Good morning, all of you. So, now today we will start the second unit of macroeconomics, that is money and banking. This unit includes two chapters. First is money, and the second is banking. So, let us start with the chapter money. Before banking, we will start with money. So let us understand the concept of money, the definition of money, types of money, measurement of money, then who supplies money. So each and everything about money. So in this chapter, we will study about the meaning and evolution of money, then forms of money and supply of money. So these are the three topics which we will cover in this chapter. So now the first is मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी का कैसे उसको लाइक इवोल्यूशन मीन्स वही होता है जैसे वो किस तरह से यूज़ में आई मनी. सो अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी. मनी का सबसे बेस्ट डेफिनेशन है दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसका हम यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, दैट इज़ कॉल्ड मनी. बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी के एवोल्यूशन के पहले गुड्स वर एक्सचेंज्ड बाय गुड्स. दैट सिस्टम वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम, बट ड्यू टू वेरी डिफिकल्टीज रिलेटेड विद बार्टर सिस्टम, मनी इन्वेंटेड एंड it is used as the common medium of exchange. Okay, so now but before plastic money or before paper money, coins of gold and silver were introduced as money. Then after that alloy metal was used for coinage. alloy का मतलब होता है मिक्सचर को मिलाकर coins बनाने लगे. then फिर paper money आया जो notes हम use करते हैं. and now the age is of plastic money. आज जो हम money use करते हैं that is credit card, debit card, जितना भी वीज़ा और ATMs और ये सारे कार्ड्स होते हैं. सो दैट इज़ प्लास्टिक मनी एंड दीज आर नोन एज ई मनी, और that is it is used as electronic transfers of money. So today is the age of plastic money. Okay, so now there are the functions of money. So that is money used as a medium of exchange, store of value, measure of value, and standard for deferred payments. Deferred payments means future payment or contractual payment, जिसको deferred payment बोला जाता है, तो contractual payment किया जाता है. So that is money. So these all are the functions of money, and these all functions are included in the definition of money. So money is what money does. It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, measure of value, and standard for deferred payments. deferred का मतलब होता है future payment के लिए. So number 1, वी यूज़ मनी फॉर एक्सचेंज. सबसे मेन जो मनी का काम है दैट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले में वी सेल एनी थिंग और वी परचेज एनी थिंग, तो दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दैन स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम ईजीली स्टोर कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, चाहे बैंक में करवाएं चाहे हमारे घर में कराएं, कहीं पर भी. देन द थर्ड इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. वी कैन ईजीली मेजर द एनी कमोडिटी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट मीन्स हम किसी भी कमोडिटी को बता सकते हैं कि इसका कितना पैसा लगेगा, इसका कितना पैसा लगेगा. सो दैट इज वी कैन ईजिली मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स. मनी का यूज़ किया जाता है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और फॉर फ्यूचर पेमेंट्स के. if today if I take loan from any person, though in that case I have to repay that loan after 1 year or after 6 months or after 10 months, तो कितना पैसा प्रिंसिपल के साथ में प्लस हाउ मच इंटरेस्ट आई हैव टू पे, तो हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे कितना पैसा उसको पेमेंट करना है, कितना कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करना है. सो दैट इज़ मनी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स. ओके, so these all are the functions of money. But before
the evolution of money, the invention of money, there was barter system. So in barter system, then goods were exchanged by goods, जिसमें goods को goods से exchange किया जाता था, किसी तरह का कोई counting नहीं किया जाता था, कोई measurement नहीं होता था, कोई common unit नहीं होता था, इस तरह से उनको exchange किया जाता था goods को goods से, and that economy was also known as CC economy, जिसको commodity for commodity economy बोला जाता था. बट ड्यू टू द मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, जब बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे जिसकी वजह से ये नीड हुई कि देयर शुड बी वन कॉमन यूनिट, कोई ऐसा कॉमन यूनिट होना चाहिए जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, एंड देन द इवोल्यूशन ऑफ मनी डन. ओके, सो फर्स्ट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. द मेन प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज टॉपिक्स सो दैट यू कम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. ओके, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये होता था कि इम्प्लाइज दैट द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर बॉन्ड्स. मतलब ऐसे दो आदमी होने चाहिए जो ईजीली एक दूसरे की गुड्स को एक्सचेंज कर सके और दोनों को ही उसकी नीड हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव वीट, अगर आज मेरे पास 1 kg ऑफ वीट है एंड आई नीड 1 kg ऑफ राइस और 2 kg ऑफ राइस, तो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो एंड दैट पर्सन नीड्स वीट. तो दैट इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि जो मेरे पास कमोडिटी है उसका नीड दूसरे को हो और जो उसके पास कमोडिटी है उसका नीड मुझे हो. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. सो दैट इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. तो इस तरह का सर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. देन द सेकेंड इज लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. हम कॉमन यूनिट कैसे कंसीडर करें? इफ़ आई नीड 1 कार, अगर मुझे कार चाहिए एंड इफ़ आई हैव 4 बफेलोज, तो क्या मैं कितने बफेलोज को एक्सचेंज करूं ताकि मुझे कार मिले? मैं 2 बफेलो को सेल करूं तब मुझे कार मिलेगी, या 3 बफेलो को सेल करूं तब मुझे कार मिलेगी? सो दैट मीन्स देयर इज़ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कि मुझे 1 बफेलो का कितना पैसा मिलेगा या 2 का कितना पैसा मिलेगा. सो हाउ कैन वी एक्सचेंज दीज गुड्स? तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम. द थर्ड इज डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट. अभी मैंने बोला कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट. If today I take loan like 1 lakh rupees from any person, from any bank, and then I know कि I have to repay it after 10 months, after 6 months, after 1 year, then I know about the interest rate and I know about the principal. But before money, how can I calculate कि how much things I have to pay? Like if I purchase 4 ladyfinger from one person, then how I come to know कि after 6 months how much ladyfingers I have to पे? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये कैसे पता लगाऊं मैं कि मुझे 6 महीने के बाद, आज अगर मैंने उसे 4 भिंडी ली है तो मुझे 6 महीने के बाद उसको कितनी भिंडी देनी है या कैसे पेमेंट करना है? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी. देन द लास्ट इज स्टोरेज ऑफ वैल्यू. वी कैन ईजीली स्टोर मनी. आज हम मनी को ईजीली स्टोर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट बिफोर मनी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर कमोडिटीज़, गुड्स. अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर. आप बताओ आप उसको स्टोर कैसे करोगे? वो तो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे. सो ड्यू टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स मनी का इवोल्यूशन हुआ और मनी का इन्वेंशन हुआ और मनी का इवोल्यूशन हुआ था. ओके, so there is one important question. Introduction of money has separated the acts of sale and purchase. How? मतलब मनी के इंट्रोडक्शन के साथ सेल और परचेज का जो एक्ट है, जो काम है, वो अलग अलग हो गया. समझो कैसे? देखो, बिफोर मनी व्हेन देयर वाज बार्टर सिस्टम, तो हम क्या करते थे कि इफ़ वी वांट टू सेल एनीथिंग देन वी हैव टू परचेज डेफिनेटली. नहीं तो अगर मुझे कुछ सेल करना है तो मुझे उसके बिहाफ में कुछ परचेज भी तो करना पड़ेगा. नहीं तो हम इंटरचेंज, हम ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है.
बट क्योंकि अगर मुझे कुछ परचेज करना है देन आई हैव टू सेल समथिंग. इफ आई नीड 1 kg ऑफ वीट देन आई हैव टू सेल 1 kg और 2 kg ऑफ राइस, तभी तो उसके बदले में मुझे मिलेगा. बट विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी, बट जब मनी का इवोल्यूशन हुआ तो इफ आई नाउ टुडे इफ आई वॉन्ट टू सेल समथिंग देन आई गेट मनी, इफ आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग देन आई हैव टू पे मनी. तो अब ये दोनों एक साथ करना ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे कुछ सेल करना है, अगर मुझे कोई गुड को सेल करना है तो मुझे दूसरी गुड को परचेज करना है. ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर हमें कुछ सेल करना है देन वी गेट मनी, उसके बदले में हमें पैसा मिल जाएगा. इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग आई हैव टू पे, तो मुझे पैसा देना है. तो मतलब गुड्स को एक्सचेंज करने की आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है फॉर सेल एंड परचेज. सेल करो पैसा मिल जाएगा, परचेज करो यू हैव टू पे. बट बिफोर मनी क्या होता था कि सेल और परचेज के लिए दोनों के पास गुड्स होना कंपल्शन होता था, क्योंकि गुड्स ही एक्सचेंज होती थी. तो तब सेल और परचेज टुगेदर चलते थे, एक साथ चलते थे. बट विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी दोनों अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए. आप सेल करो यू गेट मनी, आप परचेज करो यू हैव टू पे मनी. तो उसके लिए गुड्स को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मनी. अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी. सो देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मनी. फर्स्ट फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, एंड द सेकेंड इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी? सो द फर्स्ट इज फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी. Fiat money refers that money which is issued by the order or authority of the government, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होती हैं. It includes all notes and coins. इसमें नोट्स कॉइन्स सारे आते हैं और ये लीगल टेंडर में आती हैं. ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी में है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ही सारा डिसाइड करती है. बट फिड्यूशियरी मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द ट्रस्ट बिटवीन पेई एंड पेयर. ये दो लोगों के ट्रस्ट पर डिपेंड करता है. जैसे कि चेक क्या होता है? चेक ये एक ट्रस्ट है कि पेई और पेयर के बीच में, कि आज अगर मैंने आपको 10,000 का चेक दिया तो जो ले रहा है चेक उसको ट्रस्ट है मुझ पर कि हाँ अगर इसने मुझे 10,000 का चेक दिया है दैट मीन्स उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ तो मिनिमम होंगे ही होंगे या उससे ज़्यादा होंगे ही होंगे, तभी मैंने उसने मुझे चेक दिया है. सो दैट इज़ ट्रस्ट है. ये ट्रस्ट है जो दोनों पेई और पेयर के बीच में होता है, इसीलिए ये एक्सेप्टेड है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज फिड्यूशियरी मनी, जो फिड्यूशियरी मनी में आता है. दिस इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, कि ये दो लोगों के बीच में ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया कि भाई मैं तुम्हें चेक दे रही हूँ तो आप मेरा चेक लेना ही लेना, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये हम दोनों के बीच में ट्रस्ट पर डिपेंड करता है. जबकि फिएट मनी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आता है, गवर्नमेंट विच इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसको लीगली टेंडर में माना जाता है, लीगली बाउंड है. द कंट्री द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट. तो ये मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी में है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और करेंगे. The second is full bodied and credit money. Full bodied money और credit money होता है. Full bodied money refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value and when these are issued. Okay, like for example, if I have one gold coin, मैंने आज एक if I purchase one gold coin of rupees 10,000, आज अगर मैंने एक गोल्ड कॉइन परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, तो वो जो कॉइन का जो मटीरियल है उसकी जो कमोडिटी वैल्यू जिसका वो बना है दैट इज़ गोल्ड, और गोल्ड की वैल्यू है. तो इफ़ टुडे टुमारो आई विल सेल दैट गोल्ड कॉइन, तो डेफिनेट सी बात है मुझे उसका 10,000 रुपये तो आएगा ही आएगा. दैट मीन्स उसकी कमोडिटी वैल्यू जिसका वो बना है और उसकी मनी वैल्यू उस कितने का है 10,000 का, बोथ आर इक्वल टू.
ठीक है। तो उसकी कमोडिटी वैल्यू जिसका वो बना हुआ है और बेचने पर भी उतना ही पैसा आएगा। अगर मुझे बनाने में 10,000 रुपीज़ लगा है तो व्हेन आई सेल, जब मैं सेल करूंगी तो भी मुझे 10,000 रुपीज़ ही मिलेगा। सो दैट मीन्स व्हेन कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, दैट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। बट इन टर्म ऑफ क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी में जो बनाने का पैसा है और जो उसके अंदर इंक्लूड उसकी मनी वैल्यू है, दैट इज नॉट इक्वल। उसमें ऑलवेज मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ATM कार्ड ले लीजिए, डेबिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, किसके बने हुए होते हैं? एक मटेरियल के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक होते हैं ये सारे, ठीक है। तो इसको बनाने में मे बी फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज़ का खर्चा लगा हो, 100 रुपीज़ का खर्चा लगा हो, बट अगर वो ATM कार्ड मेरे अकाउंट पर इशू हुआ है और इन माई अकाउंट इफ़ आई हैव 5 lakhs रुपीज़, ओके, तो आज उस ATM कार्ड की वर्थ कितनी है, उसकी मनी वैल्यू कितनी है? 5 lakhs के बराबर की, ठीक है। बट जिस मटेरियल का वो ATM कार्ड बना है उसकी कमोडिटी वैल्यू 5 lakhs के बराबर नहीं है, वो तो बहुत कम होगी। हो सकता है 1,000 रुपये, हो सकता है 2,000, हो सकता है 5,000, हो सकता है 100 रुपये हो, बट उसकी वर्थ, उसकी मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अकाउंट से कनेक्टेड है, और अगर बाई चांस वो ATM कार्ड गुम हो गया और किसी को उसका पिन नंबर पता है तो वो मेरा सारा पैसा मेरे अकाउंट से निकाल देगा। सो दैट इज़, उसकी मनी वैल्यू बहुत है मेरे लिए, बट वो जिस मटीरियल का बना है उसकी कमोडिटी वैल्यू उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। दैट इज़ नोन एज क्रेडिट मनी, okay? So now this is the difference between credit money and full bodied money. Now the next question is this one, distinguish between money value of money and commodity value of money. ये हमने डिस्कस कर लिया। Can you think a situation when money plays no role? कहाँ रोल नहीं था? बार्टर सिस्टम में मनी का कोई रोल नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। Why people hold notes and coins when it is clear that the commodity value, intrinsic value of notes and coins is almost negligible? तब भी people accept करते और hold करते। Why? Because these are legal tenders. ये legal tenders है। It is accepted by the order or authority of the government. तो ये legal tenders है, इसीलिए लोग इसको लेने से कभी भी मना नहीं करते, okay? So this is all about money, evolution of money, drawbacks of barter system and the forms of money, okay? So in our next class we will discuss the next topic, that is supply of money and measures of money supply, okay? So we will discuss these two topics in our next class, okay? All of you have a nice day.